आज सभी धर्म के लोग एक मंच पर बैठकर सब एक दूसरे की त्योहार को मुबारकबाद देते हैं और इसी भारत के बारे में राहत इंदौरी ने कहा है कि हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हमारी दीदी ने न सिर्फ इनकलाब लिया बल्कि उन्होंने कहा था कि हम बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को देखने के लिए उनको कहीं पर किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और वो जब जाएं तो ये मैसेज लेकर के जाएं कि पश्चिम बंगाल वो सरजमीन है जहां अपनों से लेकर के परायों को भी गले लगाया जाता है। प्यार मोहब्बत की जो सरजमीन है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को नेताजी इंदौर स्टेडियम में आने वाली दुर्गा पूजा को लेकर के एक पूजा कमेटी की बैठक की। इसमें उनके साथ सभी मिनिस्टर्स भी मौजूद थे पश्चिम बंगाल के। इसी के साथ नाखुदा मस्जिद के इमाम शफीक काशमी भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने स्टेज से कई महत्वपूर्ण बातें रखी। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी के साथ बंगाल के लोग हर त्योहार को मिलकर के मनाते हैं और किस तरीके से आने वाली दुर्गा पूजा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा इमाम शफीक काशमी ने। যে দুর্গা পূজার যে সমন্বয়, আমরা যদি সকলে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে দুর্গা পুজোকে আরও সুন্দর করে তুলি, আমরা সকলে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত হয়ে মহামিলন মহাজাগরণ, তারপরেই সমন্বয়। মাননীয়া মা চেয়েছেন সমন্বয় বৈঠক, কিন্তু আমাদের দুটো কাজ করতে হবে, একটা হলো মহাজাগরণ আর একটা হলো মহামিলন। মহাজাগরণ না আনলে, মহামিলন না আনলে সমন্বয় হতে পারে না। তো মহাজাগরণ কিসের, একটু আগে আমরা একটা গান শুনছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর, সেটা সুরকার তিনি, রূপকার, সেই গানের তিনি রচয়িতা, যে মানবিকতার মেলা। তা আমরা যদি মানবিক না হই, মহাজাগরণ কিসের, নৈতিকতার জাগরণ, বিবেকের জাগরণ, মানবিকতার জাগরণ। স্বামী প্রণবানন্দজি তাই বললেন যে মহাজাগরণ, মহামিলন, তারপরে সমন্বয়। মিলন কেমন? পরস্পর আমরা মিলনের বার্তা নিয়ে এই পুজোকে সুন্দর করে তুলব। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সকলের পুজো। এই পুজো বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ কোটি মানুষ তাকিয়ে থাকে কবে দুর্গা পুজো হবে বাংলার দিকে। তা আমরা সেই মহামিলন এবং মহাজাগরণ আমরা অবশ্যই হৃদয়ে রেখে পুজোকে সমন্বয়ের দিকে নিয়ে যাব, তাহলে সমন্বয় সার্থক হবে। মহাজাগরণ মহামিলনের আহ্বান রাখছি সবার কাছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ এই মঞ্চেই আমাদের উদ্বোধন করেছিলেন। ভারত সেবাশ্রম 100 বছরের মাননীয়া দিদি ছিলেন, আমি তাকে বরণ করেছিলাম ফুলের তোড়া দিয়ে। আজকে মনে পড়ছে এই মঞ্চে তিনি বিনা পয়সাতে আমাদের মঞ্চতে কোনো ভাড়া নেননি, আরও অনেক কাজ করে দেন। সুন্দরবন অঞ্চলে আমাদের স্কুল করে দিয়েছেন, মহেন্দ্রগঞ্জ, গঙ্গাসাগরে বিভিন্ন প্রকল্প করে দিয়েছেন। আমাদের দিলীপ মহারাজের আরোগ্য কামনা করবেন আপনারা, তিনি অসুস্থ, তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক। তা ভারত সেবাশ্রম সংঘের অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, তার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছি। মহামিলন, মহাজাগরণ, মহাসমন্বয় নিয়ে আমরা দুর্গা পুজোকে সার্থক করে তুলব। সকলের শিরে মা দুর্গার মহান আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। বিদ্যা সমস্তস্তবদেব ভেদা স্ত্রিয়া সমস্ত সকলা জগৎসু। চণ্ডীর 11 অধ্যায়ে নারায়ণ স্তুতিতে বলা আছে, সব নারী জাতির মধ্যে আদ্যা শক্তি, পরমা প্রকৃতির শক্তি রয়েছে। সেই মাতৃস্বরূপিণী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাদয়া, তিনিও সেই মায়েদের জন্য গ্রামে যাই দেখি, সেখানে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না, সেখানে কন্যাশ্রী সাইকেলে তারা স্কুলে যায়। তারপরে তাদের বিবাহ হবে, তার জন্য রূপশ্রী। তারপরে বিবাহের পরে মায়েরা কিভাবে সংসার অতিবাহিত করবেন তার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, আবার স্বাস্থ্যসাথী, তারপরে আবার বার্ধক্য ভাতা। এইভাবে মায়ের মতো তিনি সেবা করে চলেছেন। তাকে শত শত ধন্যবাদ, শত শত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মহারাজ। এবার অনুরোধ করছি নাখোদা মসজিদের শাহী ইমাম মোহাম্মদ শফিককে ওনার বক্তব্য রাখার জন্যে।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर हम सबकी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी, महानागरिक जनाब फरहाद हकीम साहब, जनाब अरूप बिस्वास साहब और सुजीत बोस साहब और तमाम डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार, चीफ सेक्रेटरी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, डीजीपी साहब और कलकत्ता कॉरपोरेशन के तमाम ज़िम्मेदार पुलिस कमिश्नर साहब और उनके कलकत्ता पुलिस और पूरे पश्चिम बंगाल के हुकूमती सतह के तमाम ज़िम्मेदारों को और दूर दूर से आए हुए पूजा कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारों को मैं पहले ही मुबारकबाद पेश करता हूं। आज की ये मीटिंग जो 2011 से जब पश्चिम बंगाल में इनकलाब आया तो हमारी दीदी ने न सिर्फ इनकलाब लिया बल्कि उन्होंने कहा था कि हम बदला नहीं चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और बदलाव ऐसा किया कि अगर किसी को देखना हो तो हकीकत में प्रेम की गंगा जो है ये पश्चिम बंगाल में ही बहा दिया उन्होंने। आज सभी धर्म के लोग एक मंच पर बैठकर सब एक दूसरे की त्यौहार को मुबारकबाद देते हैं और दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे मनाने के लिए, अच्छे से करने के लिए हर कम्युनिटी का एक एक फर्द तैयार रहता है और दीदी के उस जुमले को हर शख्स दोहराता है कि धर्म सबका अपना अपना है, लेकिन उत्सव जो है पूरे पश्चिम बंगाल का है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, और सब लोग एक दूसरे को इस पे मुबारकबाद देते हैं। हमारे ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पश्चिम बंगाल के राज्य सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब भी मुर्शिदाबाद से आए हुए हैं। बहुत उनको भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है और 23 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो जिम्मेदार हैं वो इस त्यौहार के मौके पर पानी बिस्किट का स्टॉल लगाते हैं। और हमारा कहना यह है कि ये जो आए पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि बाहर मुल्क से भी लोग आते हैं इसमें पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को देखने के लिए, उनको कहीं पर किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और वो जब जाएं तो ये मैसेज लेकर के जाएं कि पश्चिम बंगाल वो सरजमीन है जहां अपनों से लेकर के परायों को भी गले लगाया जाता है, जहां अगर रास्ते पर चलने वाले को एक दूसरे से धक्का लग जाता है तो जिसे धक्का लगता है वो भी सॉरी बोलता है, जिसको धक्का लगता है वो भी सॉरी बोलता है। प्यार मोहब्बत की जो सरजमीन है वो पश्चिम बंगाल है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे मेयर साहब, कारपोरेशन के तमाम जिम्मेदार, पुलिस कमिश्नर साहब और कलकत्ता पुलिस के तमाम जिम्मेदार जो इस वक्त काम करते हैं। वो बड़ा अच्छा कारनामा है, किस तरह से एक एक जगह पर साफ सफाई, पानी और जो चीज की जरूरत होती है उसको मुहैया किया जाता है। और हमारे तमाम कम्युनिटी के लोग मिलजुल करके सबको एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। यही हमारा भारत है। और इसी भारत के बारे में राहत इंदौरी ने कहा है कि हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कहना चाहता हूं कि कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। इंशाअल्लाह पश्चिम बंगाल दीदी के सरबराही में गर्चे बहुत परेशानी का सामना है, लेकिन
पश्चिम बंगाल ही दुनिया में इनकलाब पैदा करेगा, भारत में इनकलाब उन्हीं से आएगा। और हम फिर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और दीदी के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दीदी को लंबी उम्र दे और उनकी क़यादत में पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि भारत की क़यादत दीदी करे और हम सब उनको सपोर्ट करते रहें। जय बांग्ला, जय हिंद, खुदा हाफिज। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।